तो you complete shooting all the take 3. Can I just see the frame on? Just camera. जी कैमरा को देख. दो कैमरा का उनको या इनको बस. He's just taking the visuals on you. Okay. अरे ये इतनी चीजें पकड़े हुए हैं आपको कैमरा भी दे रहे हैं. क्यों? What is the plot of the film and what kind of role you are playing in the film, Ashish? It's a very patriotic film, but it's designed in a way that it is a very beautiful love story at the same time. Me and Pernia, of course, are playing male and female protagonists, respectively. But yes, there is something more to offer to the audiences in this film. Beautiful, beautiful music, amazing script, the landscape. Of course, the whole film is set in the background of 1877, post-War of Independence. 20 years post-War of Independence. Yeah. So the whole combination of the film is amazingly done, beautifully executed, and of course Muzaffar Ali Saab ki direction hai, so you cannot go wrong. I mean, you cannot think of anything going wrong. What kind of role you are playing? So I'm playing the role of Noor, who's a courtesan in 1877, and she has all the charms and graces of a courtesan that these girls were meant to have. But at the same time, she's so interesting because she has a bigger purpose in life. You know, she's very patriotic. She feels very strongly for her country, and she's not happy about this British subjugation and rule. And she is a revolutionary. So the story is how this prince. It's his story, how he comes and how she changes him, you know, and his journey, and how she's so important in his journey, and how her journey and his journey become one, you know. So it's a beautiful love story set in the backdrop of pre-independence India, with like the most mind-blowing music and sets and costumes, as a Muzaffar Ali film always has. What was the real reason for the acceptance for viewers at the film आई बर्थडे पे? तो क्या real expectation और क्या रीजन क्या हो गया व्यूअर जाएगी फिल्म देखने के लिए? मुजफ्फर अली का डायरेक्शन है वो तो है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा उसके सेकंड रीजन की जरूरत ही नहीं है. मुजफ्फर अली की डायरेक्शन है तो मतलब मूवी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, यू नो, and all the elements that a Muzaffar Ali film has, which he's a genius, which is beautiful sets, the most mind-blowing music, his art of storytelling in the most sensitive way. At the same time, it's all packaged in like an entertainment, a very entertaining package of only 2 hours. So there's no reason why one would not watch this movie. Sorry, Imran, go ahead. नहीं आपने कह दिया. मेरे ख्याल में देखिए कुछ ऐसे जॉनर्स होते हैं जो कि कभी पुराने नहीं होते. बाज़ लोग कहते हैं कि ये उस तरह की फिल्म है जो कि बहुत पहले लोग पसंद करते थे या क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइमलेस होती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती. इस तरह का म्यूज़िक, और मुझे यकीन है कि हमारे अभी भी जो देखने वाले हैं और स्पेशली यूथ, वो उनको अच्छी चीज़ पसंद आती है. हम लोग अच्छी चीज़ पसंद आती है. हम लोग उनको उनके स्टैंडर्ड्स को कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं, बुरा कुछ दिखा के, तो फिर वो समझते हैं शायद यही पैटर्न है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड सेट करें, जिसके बाद हमें पता चले कि अगर इससे कोई चीज़ कम है तो वो बिलो स्टैंडर्ड है, और इससे कुछ अच्छी है तो वो अबव दैट स्टैंडर्ड है. तो मेरा ख्याल है ये वाली फिल्म है जो स्टैंडर्ड सेट करेगी, लोगों को बताएगी कि म्यूज़िक का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, फ्रेमिंग ये होनी चाहिए, खूबसूरती इसे कहते हैं, नज़ाकत इसे कहते हैं, डांस इसे कहते हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी टाइम और ये रोज़ नहीं बनती हैं. अभी साहब की मैंने आपकी तारीफ की, और यू पाकिस्तानी एक्ट्रेस आर सो ब्यूटीफुल, एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल. तो यू थिंक इट्स एन एज ओवर द इंडियन एक्ट्रेस? क्योंकि ये भी I don't know. I'm 50% Pakistani, I'm 50% Indian. My mother's Pakistani, my father's Indian. So I think I'm lucky to have the best of both worlds in terms of genes also, but even in terms of culture and तहजीब. वैसे तो एक ही culture, एक ही तहजीब है, लेकिन I think I'm blessed कि I grew up with the mentality कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है. इंडिया की भी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं. What do you consider yourself, Indian or Pakistani? Well,
ये I have to be honest, I do consider myself Indian क्योंकि इंडिया में परवरिश हुई है, हमारे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत ही दिल का रिश्ता है। हम पैदा पाकिस्तान में हुए थे, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, एंड आई लव इट। हमारे लिए पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है। फॉर मी इट्स वन कंट्री। और ये जिस वक्त की कहानी बताई गई है उसमें यही बताया गया कि हमारी हमारी किस तरह हमारी रूट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, किस तरह वो दरख्त या वो पेड़ जिसे हम आज हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं उसकी बेसिकली जो जड़ें थी वो एक साथ ही कनेक्टेड थी। और यही वजह है कि शायद मोहब्बत की बात करने का जितना अच्छा वक्त ये है इससे पहले कभी भी नहीं था। इसलिए कि जो नफ़रत की एक छोटी सी दीवार बन गई है, जो कि हाइपोथेटिकल है, मेरा ख्याल है कि वो दिलों के बीच में नहीं है, लेकिन वो जो एक बना दी गई है, तो उसको तोड़ने का फिल्म से बेहतर मीडियम कोई और होता नहीं है। आर्ट से बेहतर, म्यूज़िक से बेहतर, जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है इस फिल्म को बनाना। इमरान अब खूबसूरत हैं प्लस हैंडसम और टैलेंटेड भी हैं, लेकिन अभी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान वो बहुत मीडिया हाइप क्रिएट कर रहे थे, कोई कंपटीशन लेवल है आपका उनके साथ? नहीं, मेरा ख्याल है फवाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ये बहुत से लोगों को अकोमोडेट कर सकती है एक ही वक्त में। कभी कोई एक ही नहीं होता कि जिस तरह सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान है, तो बहुत सारे खान हैं, हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं। मैं उसके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि वो बहुत आगे जाए। मेरे लिए अपने लिए बहुत दुआ है कि मैं भी बहुत आगे जाऊं, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक इंडिविजुअलिटी मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो उसके पास है वो उसके पास नहीं है। सो हर इंसान के अंदर जो एक इंडिविजुअलिटी अल्लाह ने दी है वो सबसे खूबसूरत चीज़ है, और यही आपकी सबसे बड़ा फोटे होता है। मीडिया शायद मतलब मीडिया से इंटरेक्ट करने में आप कंफर्टेबल हैं? मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा ख्याल ये होता है कि आपका काम जो है वो खुद बोलना चाहिए, वही आपकी सक्सेस होती है। उसके अलावा आप मुझे बहुत कम देखेंगे किसी भी पार्टी में या किसी भी सोशल पेजेस के ऊपर, इसलिए कि बस काम सबसे बड़ी आपकी पहचान होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि जितनी पाकिस्तानी एक्टर्स होती हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब सफलता की बात आती है तो शायद उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। अपने पिछले मतलब हिस्ट्री की बात करें, क्या रीज़न होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I don't know, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की वजह से इट्स नॉट एज ईजी कि वो यहाँ आएँ काम करें। अब तो खुल रहा है, अब तो हो रहा है, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर आप देखें ज़िंदगी चैनल पे भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन बहुत सारी बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, और टैलेंट यहाँ भी है वहाँ भी है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक अब जैसे इमरान है, पाकिस्तानी एक्टर्स भी आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। अब पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए भी आई थिंक ये चैनल खुल गया है कि वो आ सकती हैं, एंड आई होप दे डू कम, बिकॉज वो भी बहुत बहुत टैलेंटेड हैं। यही बात आपसे कहूँगा कि देखिए टैलेंट में तो दोनों जगह बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं है, इसलिए कि बेसिकली जड़ें एक ही हैं, मिट्टी एक ही है। जो कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ वहाँ चले गए, बहुत से लोग वहाँ से हमारे पाकिस्तान से जिसमें दिलीप कुमार साहब थे या शाहरुख खान का ताल्लुक पेशावर से है, बहुत से हमारी एक्ट्रेसेस, हमारी बड़े बड़े नाम जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। तो बेसिकली ये सारा क्रॉस कल्चर जो क्रॉस बॉर्डर जो एक्सचेंज हुआ टैलेंट का, ये तो होता रहा और होता रहेगा। तो टैलेंट में तो कभी भी कोई फ़र्क नहीं है, ना टेक्नीशियंस के टैलेंट्स में, ना जो आपके फनकार हैं या जो एक्टर्स हैं या जो अभिनेता या जो भी आपके, वो तो एक जैसे ही हैं सारे के सारे। लेकिन बस ये होता है कि कुछ लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, कुछ को कम मिलता है, कुछ को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती। बट आई थिंक टैलेंट को कभी भी मैं तो नहीं कभी डिस्क्रिमिनेट करूँगा कि ये ज़्यादा है या वो ज़्यादा है। इट्स मोर और लेस द सेम। नो डाउट टैलेंट मैटर करता है, लेकिन यू नो गॉड फादर काइंड ऑफ थिंग। अब काफ़ी सारे एक्टर्स, कैटरीना की बात कर लें या जैकलीन फर्नांडिस की बात कर लें, इन पे क्या है, सलमान ने काफ़ी मेंटोर किए हैं लोगों को। आप ऐसा मानते हैं कोई गॉड फादर होना चाहिए इंडस्ट्री में? आई थिंक अगर गॉड फादर हो बहुत हेल्प करता है। लेट्स नॉट डिनाई दैट। ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप फिल्मी फैमिली से हों या आपका कोई गॉड फादर हो, आपको बहुत बढ़ावा चढ़ावा मिलता है और आपकी करियर में आपको बहुत हेल्प मिलती है, उसका तो बेनिफिट है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी सी और मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक सबकी किस्मत अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग है। तो हमारे पास कुछ they're also great. Yeah, they're also great where. Yeah, no, they're also great where they are, and we are also good where we are. You know, I think सबकी जर्नी अलग होती है. I think I wouldn't exchange my journey for anybody. इस फिल्म के रिलीज के बाद क्या लाइफ चेंज होने वाली है या? देखिए मेरी लाइफ
मैं अब अपनी लाइफ के बारे में आप बस यही बता सकता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि हिट या सक्सेस या फ्लॉप या बहुत बड़ी हिट होगी तो मेरी लाइफ में कोई चेंज आ जाएगी। जो इनर कंटेंटमेंट होती है इंसान की, जो इनर पीस होता है, वो उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक होता नहीं है। तो आप इस फिल्म को करना ही मेरे लिए, मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ चेंजिंग ये चीज़ थी कि मैंने इनके साथ काम किया। मुजफ्फर साहब के साथ एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए ये बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि मैंने इनके साथ काम कर लिया, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल है परिणया को भी यही। तो हमारे लिए ये चीज़ें मुझे परिणया का नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें कभी भी मैटर नहीं करती। आई थिंक हमारी लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। ये हमें रिलीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये साल जो हमने मुजफ्फर सर के साथ काम किया है, इतनी खूबसूरत फिल्म में काम किया है, इतना सीखने को मिला है कि लाइफ चेंज तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद आई कैन नेवर बी द सेम गर्ल दैट आई वाज बिफोर, यू नो। तो होपफुली अगर लोगों को पसंद आए, आई डोंट सी एनी रीज़न कि पसंद नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत फिल्म है, तो it will be like an added bonus, you know, but the experience wise, so already it's been the best experience of my life. Thank you. What was the real inspiration of making the film actress? ऐसा क्या inspired किया आपको अपने film बनाने? ज़िंदगी जीना, महसूस करना और ज़मीन से अपनी जुड़ा होना, और जो हम करते आए हैं उसका भी एक अगला कदम क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा जानिसार एक लॉजिकल स्टेप है। सिर्फ परिणया और इमरान तो काफ़ी लकी हैं कि आप जैसे मेंटर मिला, जैसे डायरेक्टर मिला काम करने, लेकिन आप ये समझते हैं कि वो लोग बेस्ट सुटेड थे इस रोल के लिए कि कोई और ऑल्टरनेट भी था आपके नज़र में? देखिए, अगर बेस्ट ना होते तो हम लेते नहीं, और ये भी कोई नहीं कह सकता कि और कोई कर नहीं सकता है। तो इन्होंने जो काम किया है और जो हमारा इंतखाब है वो मुझे लगता है 100% सही था, क्योंकि जो काम परिणया ने किया है बहुत कम लोग कर सकते हैं। क्योंकि एक तो उसके अंदर ये फिल्म जो है वो एक रक़ासा की है, और रक़ासा जो है वो अपने डांस से अपनी पूरी क्या कहते हैं ज़िंदगी की जो उसकी उमंग है, जो उसकी पैशन है, वो पेश करती है। तो शी कुड डू दिस होल डांस ट्रेजेक्टरी। जैसे उमराव जान ने उसके जो डांसेस थे वो उसकी ज़िंदगी के हिस्से थे। एक तो उमंग का एक दौर था, बलबला था, उसके बाद फिर एक संगम और विशाल का दौर था, और फिर उसके साथ साथ फिर जो डिसोल्यूशनमेंट है, और एक एंड में एक जो उसका एक क्या कहते हैं जहाँ वो पहुँचती है अपनी माँ के घर पे, ये क्या जगह है दोस्तों। उसी सूरत से इसका भी एक डांस का एक ग्राफ है, इसमें एक मोहब्बत है, फिर एक इनकलाब का जज्बा है, और फिर किस तरीके से एक उसकी मजबूरियाँ हैं, और ये इसने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। और हमारे साथ जो पूरी म्यूज़िक जो हमने की उसको किस तरीके से ये फीलिंग्स हाईलाइट करती हैं, ये फीलिंग्स को हाईलाइट करती है म्यूज़िक, और बिरजू महाराज और कुमुदनी लाखिया ने उसको किस तरीके से एक डांस फॉर्म किया, और फिर परिणया ने कैसे उसको इंटरप्रेट किया, और हमारे लिए कितनी आसानी हो गई फिर उसको शूट करने में, क्योंकि वो एक सांस में पूरा गाना कर सकती है, ये उसमें फैसिलिटी थी। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आजकल डांसर्स मिलते नहीं हैं टू ऑफ दिस पैशन एंड दिस कमिटमेंट। या तो उनमें ये होता है तो वो नहीं होता, वो होता है तो ये नहीं होता। और फिर डायलॉग्स भी उसने बहुत ही खूबसूरती से निभाए। उसी सूरत से इमरान ने भी इस किरदार का पूरा जो एक फ्रेम टू फ्रेम डेवलपमेंट है, और आपको लगेगा कि इसके दिमाग में एक कोई छोटा सा वर्कशॉप लगा हुआ है जो इसके जो चेंज हैं वो मैनूवर कर रहा है। और अगर आप देखें तो शुरू का हिस्सा देखें और आखिर का देखें तो एक ज़मीन आसमान का चेंज है, लेकिन कैसे वो चेंज आता है ये एक बहुत ही मतलब डेलिकेट प्रोसेस है। इसको एक दिलचस्पी से पेश करना वो से चैलेंज। ये खुद कह रहे हो? नहीं, हाँ मतलब थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ तो थोड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली इतना तो लग ही जाता है किसी कैरेक्टर के बारे में सोचना और उसके बारे में साइन करना। सर, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होता है, लेकिन बिजनेस साइड भी होता है। कॉमर्शियली कितना विएबल आप समझते हैं फिल्म को?
ये तो बड़ा भारी सवाल है, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली आपका पैशन है, जो आप जो शेयर करना चाहते हैं, अगर वो कहीं वो चीज़ पकड़ लेती है ऑडियंस को, तो वही चीज़ वायबल हो जाती है। और बाज़ वक्त आदमी 100-200 करोड़ लगाता है, उसके 20 करोड़ भी नहीं वापस आते हैं। तो ज़ाहिर है ये तो किस्मत की बात है। वायबिलिटी अगर आप शुरू से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म के बारे में सोचें तो शायद फिल्म बनाना भी मुश्किल है। लोग आपको मुराजन और रेखा को मतलब लार्जर देन लाइफ जो उनका इमेज से क्रिएट करने के लिए याद करते हैं। प्रेरणा के बारे में इतनी तारीफ की, इतनी अच्छी डांसर है, तो उनमें पोटेंशियल है रेखा की तरह लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करने की? मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें लार्जर देन लाइफ जो है वो वतन है। इस फिल्म में उन्होंने इस नहीं, हम बता रहे हैं, ये फिल्म का जो हीरो है वो है वतन। जानिसार आदमी जो है वो अपनी करता है वतन के ऊपर। तो ये लोग सब मतलब वो हैं जो वतन के ऊपर जान देते हैं। तो शी इज डन दैट एंड शी इज ब्रॉट दैट पैशन इनटू ऑन द स्क्रीन विद क्रेडिबिलिटी।